Now we'll talk about the duties as regards cash and accounts. पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊं, a very important thing that every government employee he is personally responsible for the money. ये आपको याद रखना है, ठीक है। हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई ही इज़ पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मनी विच passes थ्रू हिज हैंड, ठीक है। एंड ही इज़ पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉम्प्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मनीज विच आर रिसीव्ड बाई हिम एंड विच आर पेड बाई हिम, ठीक है। एंड ही इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस ऑफ दोज अकाउंट्स, ठीक है। Not just for the money, he is not just responsible for the money. A government employee, he is also responsible for the record maintenance of all the monies which he receives and which he incurs as expenditure, and he is also responsible for the correctness all those records and accounts, okay. And one thing is very important, that he is supposed to bring all these money values into the accounts in the suitable form as soon as they occur, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। In government, what you do, as soon as things happen you have to make the proper records, ठीक है। जब पेमेंट होती है उसके बाद ही आप एंट्री करेंगे, आप उससे पहले एंट्री नहीं करेंगे और आप एंट्री में डिले नहीं करेंगे, ठीक है। सो these are the basic principles in the cash and accounts maintenance, and these are the basic duties of all the government employees dealing with cash, ठीक है। one thing is very important, and maybe you should be aware of this, that the government employee he can never say that he has been misled or deceived by his subordinates, and this will in no way mitigate his personal responsibility। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, when you are receiving any money, when any state officer, UT officer receives any money, he has to immediately deposit the money in the nearest treasury। ये आपका फाइनेंशियल कोड कहता है। और आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, दैट द अप्रोप्रिएशन ऑफ अ डिपार्टमेंट, जो आपको पैसा एक हेड में आ गया और या जो आपने पैसा रिसीव किया एज अ रिसीट, ठीक है, आप इसको एज डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस में बी आस्क्ड, कैन यू यूज़ द receipt for the expenditure? The use of the departmental receipt for the departmental expenditure is strictly prohibited by the financial code. However, there are some exceptions and they may be asked in your examination, ठीक है। देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस, जो तो मैंने पहले ही कहा कि आप डिपार्टमेंटल रिसीट डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हाउएवर द रूल्स हैव बीन रिलैक्स्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल, in case of the civil, in case of the revenue, and in case of the criminal courts, on account of the service of the summons, on account of the diet money of the witness, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट you can keep the departmental receipts for a period of 3 months with the nazir of the court for the disbursement, ठीक है। मीन्स आप डिपार्टमेंटल रिसीट्स को एज फॉर डिसबर्समेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अप टू 3 months आपको ये मनी नाजिर के पास रखनी है, बट मीन वाइल यू हैव टू कीप अ कंप्लीट अकाउंट, ठीक है। आप एक कंप्लीट अकाउंट मेंटेन करेंगे और आप एक क्वार्टरली सर्टिफिकेट फर्निश करेंगे एजीज ऑफिस को। क्वार्टरली सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपको फाइनेंशियल कोड में मिलेगा, ठीक है। सो यू हैव टू, you can keep the money up to 3 months with your nazir, and then you can, after maintaining the proper accounts, you can furnish a quarterly certificate to the AG's office, ठीक है। this is very important। इन केस ऑफ द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जैसे R&B फॉर एग्जांपल, मैं फाइनेंशियल
कोड की बात कर रहा हूँ, द फाइनेंशियल कोड, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, मोस्टली इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एट प्रेजेंट। लेकिन एग्जाम के लिए आप याद रखेंगे, फॉर द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट where the use of cash receipts was temporarily used for the current expenditure, ये आप याद रख सकते हैं। तो पीडब्ल्यूडी में भी अलाउड था। ऐसे ही आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी इन केस ऑफ अर्जेंट नेसेसिटी आप फॉरेस्ट रेवेन्यू लोकली खर्च कर सकते थे। ऐसे ही इन केस ऑफ मिल्क सप्लाई स्कीम्स यू कुड यूज द डिपार्टमेंटल रिसीट्स, ठीक है। एंड इन केस ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप receipts यूज कर सकते थे। फॉर एग्जांपल द ग्रेजिंग चार्जेस फॉर फ्रॉम द ऑर्चर्ड्स, फ्रॉम द फील्ड्स, द फी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ठीक है, आप उसको खर्च कर सकते थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो भी पर्सनल डिपॉजिट होता है हर एक इंस्टीट्यूशन उसका हिसाब रखेगा, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आप एक्सेप्शंस याद रखेंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद देर आर फ्यू मोर थिंग्स विच यू मस्ट रिमेंबर, दैट द नो गवर्नमेंट सर्वेंट ही कैन रिसीव मनी इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, any money which is not to be credited either to the consolidated fund or to the public account। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई कोई भी मनी रिसीव नहीं कर सकता है विच इज नाइदर टू बी credited to the consolidated fund or the public account, ठीक है। कंटीजेंसी फंड पे तो हम ऑपरेट नहीं करते हैं, खैर। तो अगर आप कोई मनी रिसीव करते हैं इट शुड गो आइदर टू द कंसोलिडेटेड फंड और द पब्लिक अकाउंट। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई मनी है विच नाइदर गोज टू दिस नॉर दिस, यू शुड नॉट टेक इट, ठीक है। और in case if he is authorized to receive such money he can open an account in the J&K बैंक, ये आप याद रखेंगे, विदाउट अ सैंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर उसको किसी और बैंक में अकाउंट खोलना है तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट की सैंक्शन चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन ओपन एन अकाउंट इन द J&K बैंक। इफ़ यू आर ओपनिंग एन अकाउंट elsewhere then you have to seek the concurrence from the finance department, ठीक है। and he has to maintain the records and he has to see whether the disbursement has been done as per the rules, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द चेक्स। चेक की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, व्हाट इज द चेक, चेक में आपका क्या क्या आता है, ठीक है। चेक में द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप किस डेट पे कहेंगे इट्स अ पेमेंट डेट फॉर अ चेक, ठीक है। चेक पेमेंट डेट क्या होता है? चेक पेमेंट डेट वो दिन होता है जब आप चेक को हैंड ओवर करेंगे, इफ़ यू आर हैंडिंग इट ओवर टू समबडी, ठीक है। द पेमेंट डेट ऑफ अ चेक इज द डेट व्हेन it is handed over. If a check is handed over to the payee by the drawer or his authorized messenger, ठीक है, then the date of such handover is the date of payment of the check, should be deemed as the date of the payment of the check. And in case of you are sending the check by post, if in case the check is posted to the payee, ठीक है, the payment date shall be deemed to be on the date on which the cover containing the check is put into the post। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, there is one more thing which you must remember here, that the checks they remain current only for 3 months। हम फाइनेंशियल कोड की बात कर रहे हैं। As per financial code, the checks they remain current for a period of 3 months। लेकिन ये आपको समझना है 3 months का मतलब क्या है। They remain current for a period of 3 months only after the month of issue। For example, if I am issuing a check on 1st of January, ठीक है, it is payable at any time up to 3 months after the month of issue। The month of issue is Jan, so I will calculate Feb, March, April, so up to 30th April you can, it is the check is payable। Now suppose you are uh, issuing a check on 30th Jan,
This check, it will also be payable up to 30th of April because it is payable only after the month the check is issued for a period of 3 months. ये आपको याद रखना है. अगर एक चेक की करेंसी खत्म होती है, द चेक शुड बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे. ठीक है, अगर एक चेक, इफ द चेक रिमेन्स अनपेड फ्रॉम एनी कॉज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. पहले तो मैंने पहले ही कहा कि चेक इज पेएबल फॉर 3 मंथ्स ओनली. तो अभी आप कभी क्या कर सकते हैं, अगर एक चेक, लेट अस सपोज अ चेक इज डिस्ट्रॉयड. ठीक है, उस टाइम मैंने आपको बताया आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इशू ए न्यू चेक. ठीक है, तो उस पर डेट ऑफ इशू रेड इंक में डाल देंगे, तो यू कैन इशू ए न्यू चेक. बट इफ ए चेक रिमेन्स अनपेड फ्रॉम एनी कॉज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ये आप याद रखेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू द चेक शुड बी कैंसल्ड and its amount should be written back. This is very important. आप चेक का अमाउंट राइट बैक करेंगे, आप चेक का अमाउंट, इसकी एंट्री रिवर्स कर देंगे इन द रिलेवेंट रिकॉर्ड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पॉइंट को याद रखिए. ठीक है, इन द कैश बुक, अगर आपने कैश बुक में एंट्री कर दी और आपको आपकी चेक एक्सपायर हो गई, तो आप क्या करेंगे, आप वो चेक लाएंगे, आप वो चेक डिस्ट्रॉय करेंगे. ठीक है, लेट अस सपोज आपकी चेक खराब हो गई. ठीक है, इन दैट मैटर आप क्या कर सकते हैं, आप एक नई चेक भी इशू कर सकते हैं, लेकिन आपको डेट ऑफ इशू रेड इंक में डालना है कैश बुक में. ठीक है, पेमेंट कॉलम में नहीं डालना है, और उसमें एक नोट डालना है अगेंस्ट द ओरिजिनल एंट्री जहाँ पे आपने पहली चेक इशू की थी. लेकिन अगर आपकी चेक अनपेड रहती है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, आप वो डेट ऑफ इशू कैंसिल करेंगे इन द कैश बुक, और आप एक राइट बैक एंट्री डालेंगे इन द कैश बुक. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है,